the cleanest city of the country. You can think the revolution what we have made. तो अफ्रीका ने भी कुछ ऐसा ही किया है और अब जिस तरह से अफ्रीका आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ बढ़ रहा है, कई बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए खड़ी हो रही है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो मनीष जी, तुषार जी और आप टीम मेंबर्स सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्तों सूरत वासियों, चेंबर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स, હું સુરતનો છું એટલે સુરતની गुजराती भाषा में कहूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने भाषा में अपने लोगों के साथ बात करना पसंद करूंगा कि 13,500 સભ્યો ધરાવતી 150 થી વધુ એસોસિએશનનું પીઠબળ ધરાવતી ભરૂચથી ઉમરગામ સુધીનો વિસ્તારની અંદર કાર્ય કરતી આપણી આ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ 1940માં સ્થપાયેલી આજે 2025 એટલે કે 85મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે। 21 ઓક્ટોબરથી 86મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે અને હું એનો 79મો પ્રમુખ। આપણે સૌ જાણીએ તેમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ જે 5 કાર્યક્ષેત્રમાં કામ કરે છે એમાંનું પહેલું કાર્યક્ષેત્ર 300થી વધુ કાર્યક્રમો કરીને દક્ષિણ ગુજરાતનો ઉદ્યોગપતિ જ્ઞાનથી વંચિત નહીં રહી જાય તે માટેના પ્રયત્નો સેમિનાર, વર્કશોપ, કોન્ક્લેવ દ્વારા આપણે કરીએ છીએ। એક રીતે એક્ઝિબિશન એ આપણી યુએસપી છે। અત્યારે તમે આ જે જગ્યા પર બેઠા છો તેનાથી થોડેક દૂર આ પ્રિમાઇસીસની અંદર 1,16,000 સ્ક્વેર ફીટનો પિલરલેસ એર કન્ડિશન ડોમ છે કે જેમાં આપણે 15 એક્ઝિબિશન દર વર્ષે કરતા હોઈએ છીએ। પહેલું યાનનું એક્ઝિબિશન 1લી તારીખથી શરૂ થઈ રહ્યું છે, પહેલા મ્યુનિક અમારા કાર્યકાળમાં થઈ ગયું। ટેક્સટાઇલના લગભગ આખા વર્ષમાં 5 સ્ટાર્ટઅપ, હેલ્થ એક્સપો, ઓટો એક્સપો આ પ્રકારના આયોજનો કરતા હોય છે અને તે આયોજન પાછળનો મુખ્ય હેતુ એટલો જ હોય છે કે ઉત્પાદકતાને સીધું માર્કેટ મળી રહે। એવું ત્રીજું કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વના ક્ષેત્રમાં પણ આપણે કામ કરીએ છીએ। ચોથું ગવર્મેન્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન, રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકારથી માંડીને આ બધા ક્ષેત્રોમાં આપણે કામ કરીએ છીએ અને સરકાર આપણી રજૂઆતો સાંભળે છે। અને જે 5મું કાર્યક્ષેત્ર છે જે આજે આપણે બેઠા છે તે ઇન્ટરનેશનલિઝમ। આમ તો 85 દેશો સાથે આપણી કનેક્ટિવિટી છે, પરંતુ આપણે 10 દેશોને ફોકસ કર્યા છે કે જેથી થોડું ફોકસ કાર્ય કંઈ થઈ શકે અને એમાંનું એક એ મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન આપણે માટે અને તે આફ્રિકા છે। આફ્રિકાની સાથે કેટલો વેપાર હોઈ શકે અથવા અત્યારે કેટલો છે એ બધા આંકડા તો એ લોકો જ આપશે આપણને, એટલે એ વધારે એની અંદર નથી જતો, પણ આફ્રિકા સુધી આપણને લઈ જવા માટે કેટલાક જે કડી છે એમાંની એક કડી એટલે તે અરાઇઝ એલએનપી। અને આમ પણ કોઈ અજાણ્યા દેશની અંદર, અજાણ્યા પ્રદેશની અંદર ધંધો કરવો હોય ને આપણે એકદમ કૂદી પડીએ બહુ યોગ્ય વાત પણ નથી। તો એક એવી ચેનલથી, એવા એક માધ્યમથી આગળ વધીએ કે જેને કારણે આપણને ધંધો કરવામાં સરળતા રહે, સગવડ મળી રહે। સરકાર સાથેના એમના સંબંધો ખૂબ મજબૂત છે એટલે એનો ફાયદો આપણને મળી રહે અને એના કરતાં પણ વધારે વિશ્વસનીયતા। આપણે મોટે ભાગે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસની અંદર ફસાઈ જવાનો ડર એ જ રહેતો હોય છે કે આપણું પેમેન્ટ ફસાઈ ગયું તો શું, આ ડર આપણને બધાને હોય છે। ત્યારે આ પ્રકારની એજન્સી આપણને ખૂબ મદદરૂપ થતી હોય છે। તો આપણે અરાઇઝ એલએલપીનો મેક્સિમમ સદુપયોગ કરી તેઓના થકી આપણા સૌના બિઝનેસને વધારીએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિકસિત ભારત 2047ના સ્વપ્નને સાકાર કરીએ। ચોથી મહાસત્તા બની ચૂક્યા છે, ત્રીજી મહાસત્તા બનવાની દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે। એ દિશાની અંદર આ મિત્રોને સાથે લઈને આપણે સૌ પ્રગતિના ઉચ્ચતમ શિખરો સર કરીએ એવી પ્રાર્થનાની સાથે આપ સૌનું વધુ એક વખત હાર્દિક સ્વાગત। ધન્યવાદ। Thank you, Mr. President, for your warm welcome speech. The way you explain, I also want to add here one more point. जैसे सर ने पहले ही बताया कि अफ्रीका मतलब पहले जैसे हम लोग वहाँ के लिए सोचते नहीं थे, but since last couple of years if you look at majority of Indians or majority of Gujarati specific, they have kept a maximum investment in the region Africa, and today because of that probably they are on the I can say that there are country to country, even if you look at you find 4-5 big people of India who is contributing best, even if you consider the weightage of the GDP of that respective country as well. The second most important thing what he has told, जहाँ पे मतलब डर के बिना प्रीति नहीं होती है,
એક ટાઈમ હતો ત્યાં ડર અને એનો માહોલ હતો. આજે આફ્રિકાની અંદર ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ એવી છે કે જ્યાં તમે કોઈ પણ જાતના ડર વગર રહી શકો એમ છો. मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे ऐसे बहुत सारे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ. They are the people those who are doing trading with the Africa in a big scale. They have multiple people to whom they knows कि इनका यहाँ पे सबसे ज्यादा या तो इंपोर्ट हो रहा है वहां से या तो एक्सपोर्ट हो रहा है. हो सकता है वही लोग हैं जो आपके साथ उन लोगों को सीधा भी कनेक्ट करवा सकेंगे, या वो आपके साथ कनेक्ट होंगे तो भी हो सकता है कि एक जो हम लोग गैप आइडेंटिफाई किए है वो गैप एलिमिनेट हो जाएगा. So with this today's program, as per the rituals of our organizations, we would like to felicitate our today's guest, and I request the office bearers and Sri Sanjay Punjabi ji to join. First, we would like to felicitate Sri Manish Maharaj ji. Also, would like to extend a flower felicitation to Sri Tushar Khairnar ji, please. थैंक यू. सो आज का ये जो कार्यक्रम है उसका मकसद क्या है? अबाउट द प्रोग्राम आई रिक्वेस्ट श्री संजय पंजाबी जी, ग्रुप चेयरमैन फॉर द ग्लोबल कनेक्ट, इज गोइंग टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ आवर टुडेस मीट. So, Russia got 8.8 ka earthquake today morning. So if we see that continent wise that any stable or that having a lot of potential in the whole world, then the global eyes are on Africa, and there is a lot of potential, and in 21st century second half onwards probably Africa will be the new European Union, and that is अफ्रीका के साथ दूसरा एक थोड़ी घटना ये हुई है कि Africa has been exploited by almost all continents. It includes that USA, UK, lately by China. But the good point with India is that Africa consider India as elder brother, and they look forward to have a more trade with India, and that is a global opportunity. The second point of today's program is that we are here not to get any gyan कि कैसा होता कैसा नहीं होता है, but to do a action, to do a networking, and to understand properly that how we can increase our business if we are doing, or if we are not doing, then how we can think about opening a channels to have a trade with Africa, maybe a import, maybe a export. So that is a concrete result-oriented global connect. We are entering into third year, and in this case, that the people like our organization, like Arise, can help us to understand more. We should not only complete this as a seminar, but as we finish that, whatever we have the query, the practical query, we will try to resolve it out with the people over here. They are the key stakeholders, and they can explain us and why we should do more business, or Surat can understand the more trade with Africa is because that lot of resources we are having which can be a plus point for us, number one. Number two, that policy over there is getting liberalized. Maybe some of the policies that they want their manufacturing to be happening in Africa, of course that we do consider that point also. But apart from that, the logistic point of view also, that it happens that अगर वहाँ पे कुछ manufacturing करते हैं तो शायद हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है. The political stability is also get increased, and that also gives a one more reason to consider to have a global trade with Africa. Labor, of course, is another point
and compliance is, if you consider that developed nations like USA, their compliance for that global trade is on a different scale compared to that Africa. So considering all these points, we have designed, and we are thankful for Paresh Bhai and his team doing a extraordinary work for the Global Connect, and all people, those who are connected directly or indirectly, they putting that efforts with that एक ही vision है, and I end up with that. अगर वो सही लगता है तो दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। With this note, we request Manish Bhai and Arise team to enlighten us about practical aspect of doing a global trade with them, and we are not chasing to any statistics, of course that is required for understanding the market and the market size, but you'll guide us about that the commodities or the businesses over here, particularly in textile aspects or gems and jewelry aspects, or maybe a agro products aspect, or maybe engineering aspects, maybe a renewable energy aspect, maybe chemical aspect, or any specific more it is there. We'll try to cover them up. But let this not be a seminar. This can be a dialogue and not a monologue. So let's begin with that. Manish Bhai, over to you. Sorry, before Manish Bhai will take charge, I request Komal Bhai to introduce a speaker. Yeah. Thank you very much, Paresh Bhai. It is my privilege to give an introduction of the speaker. Mr. Manish Maharaj served as a general manager, where he spread the operational execution, stakeholder coordination, and investor engagement across the multiple industrial platforms. His leadership plays a pivotal role accelerating the infrastructure development and fostering the inclusive economic growth across the Africa. With the extensive experience in infrastructure and industrial zone development, Mr. Manish has successfully overseen a project implementation across the various African nations from east to west to the southern Africa, including the countries like Benin, Togo, Rwanda, Cote d'Ivoire means Ivory Coast, the Democratic Republic of Congo, DRC, Kenya, Chad, Nigeria, and Malawi. Mr. Manish is a good speaker on an international trade platform. Most recently, he addressed the Gujarat Africa Trade Expo, where he said the insight and strategies business linking between the Gujarat and the African market. Prior to this role at Arise, Manish had the senior leadership positions in the media industries. He served as a vice president and the Times Network Lead Growth Initiative, leading media organizations just like as a Z Media Corporation, Aaj Tak, and Annie Devi. Thank you very much. So I request all of you to give big rounds of applause. Thank you. Thank you. सबसे पहले ये सदर्न गुजरात चेंबर का मैं बहुत आभारी हूँ। एक बात मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ, गुजरात में राजकोट हो, मोरबी हो, अहमदाबाद हो, अंकलेश्वर, हर जगह मैं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मिल रहा हूँ, पर जो सिंसियरिटी सदर्न गुजरात चेंबर परेश सर और उनकी टीम ने दिखाई है टू मेक अस मीट व्हाट वी इंटेंड टू, एंड मुझे पता है कि ये मेरा भला तो चाहते ही चाहते हैं, पर ये अपने रीजन के बिजनेसमैन का भी बहुत भला चाहते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिसको जरूरत है और जो जरूरत पूरी कर सकता है वो कनेक्ट हो जाए, राइट? तो इट्स गुड फॉर बिजनेस। एनीवेज, आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं आप लोगों को। अफ्रीका के बारे में सब लोगों ने बोला। एक बिजनेसमैन थे, एक एक्चुअली
एक जेंटलमैन हैं मिस्टर गगन गुप्ता। वो काम किया करते थे ओलाम के साथ एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। 2010 में उनको भेजा गया था गैबॉन। गैबॉन एक छोटा सा कंट्री है इन अफ्रीका। वहां पर टिम्बर का ऑपरेशन वाइंड अप करने के लिए उनको भेजा गया था। उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने गुलाम से रिक्वेस्ट करी कि ही वांट्स टू डू समथिंग अबाउट इट, कुछ करना चाहते हैं वो। प्रॉब्लम क्या था, जो पेड़ काटते थे, जो कटर्स होते हैं, वो काटने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इनफ एंड मोर ऑर्डर बहुत ज्यादा नहीं था। ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड्स जो थे बहुत खराब थे, तो ट्रक्स काफी नहीं थे माल उठाने के लिए, और बायर थे पर बायर को माल नहीं मिल रहा। तो ये वैल्यू चेन को कनेक्ट किया उन्होंने। ये वैल्यू चेन को, ये स्टोरी है कुछ 2010 की। 2010 से लेके 2025 आज मिस्टर गगन गुप्ता इज अ फाउंडर ऑफ अराइज IIP, और आज हमारी कंपनी का वैल्यूएशन $1.5 बिलियन है। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी आर। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अपन बात कर रहे हैं। 15 साल में कंपनी का साइज। कुछ चीजें और बोलना चाहता हूं मैं, रियली प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं जाना चाहता हूं, बट आई वांट टू, मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूं यहाँ पे अफ्रीका पर्सपेक्टिव से। एक लैंड पार्सल, जो एक लैंड होता है, उसको एक SEZ बनाने में या इंडस्ट्रियल जोन बनाने में बहुत सारा पैसा डालना पड़ता है राइट पहले, बिफोर एनी इन्वेस्टर विल कम एंड पुट अप हिज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। तो ये करने के लिए जब इतने पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके पीछे स्टडी भी बहुत इन डेप्थ होनी चाहिए। हम काफी टाइम लेते हैं किसी कंट्री को स्टडी करने के लिए। हम समझते हैं कि वहां की गवर्नेंस कैसी रही है, वहां का टोपोग्राफी क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, लेबर सप्लाई क्या है, ये सारी चीजें समझने में हम काफी, मतलब साल भर का टाइम लेते हैं। उसके बाद हमारा बोर्ड अप्रूव करता है कि यस वी आर गोइंग फॉर दिस कंट्री। सो गैबॉन से जो स्टोरी शुरू हुई थी 2010 में, आज हम 15 कंट्रीज में। वी आर द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो आपको सिर्फ एक रीजन में या एक कंट्री में नहीं, बल्कि 15 लोकेशन पे मदद कर सकता है। अफ्रीका आप लोग शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे, आप लोग डील कर रहे हैं अफ्रीका से। सो कुल मिला के 54 कंट्रीज से मिलकर बनता है अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट। आज इंडिया $100 बिलियन का ट्रेड करता है अफ्रीका के साथ। ये 6 साल में, मतलब 2030 तक, दिस इज गोना बिकम $200 बिलियन वर्थ बिजनेस। अगर हम हाल फिलहाल में मोदी जी की विजिट भी देखते हैं, तो वो घाना जाके और अफ्रीका के 1-2 और कंट्री जाकर आए। पूरा का पूरा ईस्टर्न अफ्रीका 80% ऑफ बिजनेस इज डोमिनेटेड बाय गुजरातीज। सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका में आपको बहुत सिंधी मिलेंगे। हमारी खुद की कंपनी में बहुत सारे इंडियन हैं जो वहां काम कर रहे हैं। तुषार भाई हमारे टोगो में रहते हैं। हिज होम टाउन इज नासिक। ही हैज बीन इन टोगो, अपने परिवार के साथ रह रहे थे वहां पर, और बहुत सारा इंडियन स्टाफ हमारा वहां रहता है जो बहुत अच्छे से, और बहुत, ये इतनी सारी स्लाइड्स जो है ना, मैं ये सारी स्लाइड्स पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ज्यादा सवाल का जवाब दूं। ओके, कैसे फायदा हो सकता है आपको मेरे एक्सपीरियंस का या हमारे एक्सपीरियंस का, क्योंकि उस मार्केट में हम 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और हर दिन सीख रहे हैं कि उस मार्केट में कैसे बिजनेस करना है। एक और चीज बताना चाहता हूं मैं कि हमारा जो कोर बिजनेस है, इट्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग। कि अगर कोई अपना प्रोडक्शन वहां डालना चाहता है, कोई फैक्ट्री डालना चाहता है, तो अराइज कैन बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी सच इन्वेस्टर और अ बिजनेस। ओके, और वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो अभी का जो सप्लाई है वो कंज्यूम हो चुका है। अब तक अफ्रीका
को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, पर अब लोग अफ्रीका को बहुत सेंसिबली देख रहे हैं. इट इज आज पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है, which is supposed to go to 2.5 billion by 2050. कहते हैं कि आज से 10-15 साल में हर एक बंदा 4 लोगों में अफ्रीकन होगा. जीडीपी भी $3 trillion by 2030 it will reach to. Political and financial stability, जैसा मैंने बोला कि 54 कंट्रीज हैं. हम अफ्रीका के बारे में एक धारणा रखते हैं कि अफ्रीका सेफ है कि नहीं है. ओके, ये बहुत ऑफनली मुझसे पूछा जाता है. भाई साहब, अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बता सकता हूं, और चाइना बहुत अग्रेसिवली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है. ओके, जहां माल है, रॉ मटेरियल आपको वहां पर मिल रहा है, आपको लेबर बहुत चीप मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी और गैस हम करवा के दे रहे हैं. ओके, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. कनेक्टिविटी, 450 से ज्यादा एयरपोर्ट अभी के डेट में है. 100 सीपोर्ट लॉन्ग 26,000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन एंड लोबितो कॉरिडोर. ये नेटवर्क बन रहा है टू इंक्रीज कनेक्टिविटी. नेचुरल रिसोर्स के बारे में आई जस्ट कम डाउन टू these are regional economic communities. Now ये economic communities have been there for some time. ये कुछ सालों से है. ये क्या करता है, ये ट्रेड रिलेशन बिटवीन कंट्रीज को इम्प्रूव करता है. बट ये रीजनल कम्युनिटीज हैं. बट अब एफ्टा करके एक कम्युनिटी बन रहा है which is going to be a single market for all 54 countries, which is a very very inspiring move. Now when we talk about natural resource, chromium, cobalt, manganese, tantalum, diamond gems and jewelries and uranium, if you actually look at it, they have a sizable share. हर चीज में अफ्रीका का 45 to 50% के करीब शेयर है. और मुझे लगभग हफ्ते में 3 या 4 लोगों की क्वेरी आती है कि मुझे बॉक्साइट का माइन चाहिए, मुझे कॉपर के माइन चाहिए, मैंगनीज हम माइन करना चाहते हैं. When it comes to agro commodities, whether it's cocoa, cashew, shea butter, olive oil, peanut, sugar, coffee, tea, they are either first or second in terms of rank, in terms of producer and exporter also. So in case of अगर मैं वर्ल्ड कोको प्रोडक्शन में बोलता हूं तो आइवरी कोस्ट अलोन टेक्स केयर ऑफ 44%. कैशूनट अगेन आइवरी कोस्ट में सबसे ज्यादा कैशूनट होता है, उसके बाद इंडिया में. आज इंडिया में भी बहुत सारा कैशू अफ्रीका से आता है. और हम सब जानते हैं आज की डेट में जब कैशू का सीजन आता है तो गुजरात से लोग 2-2 महीने 3-3 महीने जाके वहां पे रहते हैं. दे ऑल वांट टू हैव दैट शेयर ऑफ कैशू. मैकेंजी का एक रिपोर्ट आया था 2023 में. ये एक्चुअली बताता है कि अफ्रीका की इकोनॉमी कैसे डिफर कर रही है व्हेन इट कम्स टू ऑल 54 कंट्रीज. इफ यू लुक एट दिस, ये जो लाइट ब्लू है ये रीसेंट एक्सीलेटर्स हैं जो अभी एक्सीलेट होने चाहिए, और जो ये डार्क ब्लू है ये कंसिस्टेंट ग्रोअर है. ये जो कंसिस्टेंट ग्रोअर है ना, और यहां पे मेजरली अफ्रीका में अराइज ने अपना फुटप्रिंट बनाया है. $500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना. आई टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज. सिंस सूरत इज अ टेक्सटाइल हब, देखिए अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और बहुत सारा डिटेल हम दे सकते हैं, पर मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी को जरूरत है समझने की किसी एक अपॉर्चुनिटी को, तो हम यहाँ पे 2-3 दिन और हैं, इसके बाद हम डेफिनेटली मिल सकते हैं. कुछ चीजें हमने सिर्फ डाली है स्लाइड में बिकॉज हर चीज स्लाइड में नहीं समझाया जा सकता. तो
अगर मैं बोलूं कॉटन प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन ओनली वेस्ट अफ्रीकन रीजन, ओके, 1 मिलियन टन ऑफ लिंट कॉटन एवरीवेयर निकलता है, जिसकी वैल्यू इन यूएसडी बिलियन डॉलर इज अराउंड $2 बिलियन। जब उसको स्पिन करके हम करते हैं तो 8,50,000 टन के करीब बनता है, जिसका यूएसडी वैल्यू है 3.4 बिलियन। विविंग और निटिंग करने के बाद द सेम थिंग रिमेन्स टू 4,080 मिलियन मीटर्स, which is equivalent to 5.7 billion. Processed fabric is 3,876 million meter, जिसका वैल्यू 9.3 बिलियन है। तो वैसे ही गारमेंट अपैरल एंड गारमेंट अपैरल रिटेल, इनकी ये वैल्यू है। सो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, ठीक है। किसी भी धंधे में आप लोग सब टेक्सटाइल, आई एम श्योर सूरत इज ऑल अ लॉट अबाउट टेक्सटाइल, और रॉ मटेरियल 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आज की डेट में इजिप्शियन कॉटन का भी यील्ड कम हो रहा है, पॉलिएस्टर का जरूरत ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, कॉटन अवेलेबल है, और हमने खुद ने उसको प्रोसेस किया है, और आगे चल के मैं दिखाता हूं आपको। अब ये 5 पैरामीटर है जो बहुत जरूरी है। और कॉटन निकल के जाता कहां है? वेस्टर्न अफ्रीका का पूरा कॉटन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये 4 कंट्री जाता है। तो लेट्स कंपेयर देम। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें तो बांग्लादेश और वियतनाम के पास कॉटन नहीं है, उनको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है, हालांकि इंडिया और चाइना के पास है। लेबर कॉस्ट $150 पर मंथ आपको लेबर मिलता है अफ्रीका में, वहीं इंडिया में 180, चाइना में 500, 130 और 300। टेक्सटाइल वाला ओरिजिनली यूके थी, हमें मालूम है कि ये लंदन से इवॉल्व हुआ था, लंदन से फिर उसके बाद इट वेंट टू चाइना, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया एंड बांग्लादेश, और इसके बाद यहां से द फाइनल डेस्टिनेशन इज गोना बी अफ्रीका। क्यों? इसका भी एक रीजन है, बहुत मेहनत लगती है टेक्सटाइल फैक्ट्री में, और मैं बहुत टेक्सटाइल वालों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि यार हम कुछ और भी देखना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है। बट जिस तरीके से यूके में बिजनेसेस आगे बढ़े, they moved towards technology, then it was handed over to China. China also the same thing is happening. People are moving to businesses जहां पे ROI ज्यादा है, which is more technology driven. Although textile also has a lot of technology which has come in, but वो कहते हैं ना कि फार्मर का बेटा फार्मिंग नहीं करना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, पर वो है तो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो जरूरत कहीं ना कहीं से तो पूरी होनी है। Speed to market. Now, Europe and US are the biggest market, और ये सब जानते हैं, ओके। गारमेंटिंग में या टेक्सटाइल में स्टॉकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सप्लाई 2 महीने 3 महीने में चेंज हो जाती है, डिजाइन प्रिंट 2-3 महीने में चेंज हो जाती है। तो एक्सेस टू मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट से कितना क्लोज है। सो स्पीड टू मार्केट, यूरोप के लिए 20 दिन और यूएसए के लिए 25 दिन, वेयर इन केस ऑफ इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम इज मोर देन 50 days, 45 days बेसिकली। पावर, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन यूटिलिटी। Textile solar power is available in all our zones and the cost is $0.08. If you compare that with Bangladesh and Vietnam, they are of course lower, but Africa still has a long way to go, and I'm sure the prices will further go down. Now Africa has a preferential agreement in case of duty with US and Europe both. India, China, or with the current tariff trend,
वी डोंट नो, इंडिया स्टिल हैज नॉट स्ट्रक द डील। तो अपने को नहीं पता कि क्या डील होने वाला है, बट अगर यूरोप को 15% मिलता है, यूरोपियन यूनियन को 15% ड्यूटी मिलता है, तो इटसेल्फ यूरोपियन यूनियन वाज लेस देन 5% एक्चुअली बिफोर दिस, अब वो 15% उनको मिला है। तो लेट्स सी इंडिया कब अपना डील पे पहुंचता है। एक बहुत बड़े टेक्सटाइल प्लेयर है, होम टेक्सटाइल के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी मुलाकात हुई लास्ट हफ्ते। तो बोल रहे थे कि ये ड्यूटी डिसाइड करेगा कि हम क्या करेंगे। अगर ये ड्यूटी हमारे फेवर में नहीं रहा तो मैं एक हफ्ते के अंदर आपको फोन करूंगा मनीष, एंड वी आर गोइंग अहेड इन सेटिंग अप अ प्लांट व्हिच विल प्रोड्यूस फॉर एंटायर यूरोप एंड यूएस टू बी सेट अप इन अफ्रीका। सो पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट। अब लोग ना एनवायरमेंट को लेके बहुत कंसर्न है, स्पेशली जो हर कोई यूरोप और यूएस मार्केट पहुंचना चाहता है। यूएस एंड यूरोप में सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी ये बहुत मैटर करता है। सो टोगो और बेनिन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो टोगो और बेनिन का पूरा कॉटन जाता है बांग्लादेश, चिटागोंग, विच इज अराउंड 15,000 किलोमीटर। फिर यहां से माल बनकर ये जब हैम्बर्ग में पहुंचता है तो ये अनदर 16,000 किलोमीटर्स। तो एक माल फ्रॉम रॉ फॉर्म टू फिनिश्ड फॉर्म पहुंचने तक अराउंड 23,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है। पर अगर सेम माल टोगो और बेनिन में बनता है तो हैम्बर्ग तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8,000 किलोमीटर में वो माल पहुंचता है। ये आज के टाइम में इसकी क्या वैल्यू है, आई एम श्योर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कार्बन स्कोर कितना है, ये ऑलवेज डेवलप इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है आज के डेट में। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन ऑफसेट कर रहे हैं 23,000 किलोमीटर, which is actually 5,300 metric ton of CO2 per annum जो हम ऑफसेट कर रहे हैं। ये कार्बन स्कोर यूरोप और यूएस दोनों के लिए आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एनीबडी हु वांट टू डू बिजनेस विद देम। नाउ हमने एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने सिर्फ जगह नहीं बनाई है, हमने इकोसिस्टम बनाया है कि धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक्चुअली किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो लेबर जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है इसमें। हमारे पास टोगो और बेनिन में दो गार्मेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, विच इज अराउंड इफेक्टली 2,000 लोगों को हम ट्रेन करते हैं वहां पे। आज की डेट में हमारे कुछ कंपनीज हैं जो वहां पे काम कर रही हैं, दे हैव रीच्ड टू एफिशिएंसी ऑफ 60%, और हमारे पास काफी मैन पावर अवेलेबल है टू सर्विस एनी रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू लेबर। ऑल्सो अगर समझ लीजिए कि अगर आपको जरूरत है कि आप अपने स्किल्ड, अपने टेक्निकल जॉब के लिए आपको यहां से इंडिया से अगर एक्सपैट लेके जाना है तो उसके ऊपर भी कोई भी एम्बार्गो नहीं है। ये डिटेल्स ऑफ जीटीसी सेंटर्स हैं जो हम आज की डेट में रन कर रहे हैं अलॉन्ग विद गवर्नमेंट। दिस इज प्राइमरली टू मेक श्योर दैट द लेबर इज अप टू स्पीड। ये बेनिन में 3 टेक्सटाइल यूनिट हमारे पास है, बेनिन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन एंड इनकी कैपेसिटी हमने मेंशन करी हुई है यहाँ पे। और आज की डेट में हम ब्रांड्स लाइक कियाबी, यूएस पोलो और बहुत सारे यूरोपियन ब्रांड्स को वहां से सर्विस कर रहे हैं। टोगो में भी हमारे पास अभी हमने रिसेंटली स्टार गारमेंट के साथ 1100 मशीन, राइट, 1100 मशीन की एक यूनिट शुरू करी है स्टार गारमेंट की वहां पर, एलिगेंस टेक्सटाइल, एंड there are other services also which is available. These are some photos, and as I said, अब हर बिजनेस करने वाले को
ये चाहिए कि उनका माल कौन खरीदेगा। ठीक है, तो जब हम ये टेक्सटाइल पार्क, थीम पार्क बनाते हैं तो हमारे पास ब्रांड्स आते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी फ्यूचर इन्वेस्टर को अगर इनिशियल हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी तो हम वो करेक्ट करके देते हैं। बाकी वो इन्वेस्टर और ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो ब्रांड अभी के डेट में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, H&M, अंडर आर्मर, कॉन्टूर ब्रांड, सैनमार्क, केआबी, द चिल्ड्रंस प्लेस, रॉली स्पेन, जेमो, ओटो ग्रुप, जॉकी इंटरनेशनल, डिकॉथलॉन के साथ हमारी बात चल रही है। Now, जैसा मैंने बोला कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट द लैंड। लोगों को ट्रेन करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट भी करवा के लेना, ये सारा एक अलग अलग वर्टिकल है जो हमारा देख रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए पैसा वर्ल्ड बैंक और अदर बॉडीज भी लगाते हैं। देखिए अफ्रीका की जो स्टोरी है ना, सब लोग चाहते हैं अफ्रीका की स्टोरी का पार्ट बन के रहे। सो इट इज सेलिंग इन, लॉट ऑफ फंड्स आर कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। When it comes to sustainability, जो टी शर्ट मैं बनाता हूं या जो टी शर्ट चाइना से बन के आता है, it creates 60% less impact on global warming. 60% of less impact on global warming than anything which is made in China. And this is all not my study, but a third party tool which gives that certification to us. टेक्सटाइल के बारे में अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना हो या समझना हो तो वी आर हियर, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन एनीथिंग व्हाट यू वांट टू नो अबाउट टेक्सटाइल। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, मैं दूसरा एक और अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, विच इज इनटू टिम्बर। नाउ हम सब जानते हैं कि लकड़ी अब हर जगह से नहीं कट रहा, मलेशिया से माल नहीं निकल रहा है, इंडिया से भी बहुत कम लकड़ी कट रहे हैं अभी। तो हमारे पास 3.2 मिलियन हेक्टेयर का परमिशन है इन गैबॉन। FSC सर्टिफिकेशन है। हार्वेस्टिंग वॉल्यूम इज 1 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर। और इतना लकड़ी है कि नेक्स्ट 25 से 30 साल तक किसी भी बिजनेसमैन का रॉ मटेरियल सप्लाई फुलफिल होएगा। जो स्पीसीज ऑफ वुड है ओकोमे, ये अफ्रीका का सबसे फेमस है। वहां पे ये लाइट वेट, सॉफ्ट रेडिश पिंक होता है, इजी टू पील, और ये बेसिकली प्लाईवुड, फेस, कोर और विनियर के लिए काम आता है। मंथली अवेलेबिलिटी अगर ओकोमे, अगर एनुअल अवेलेबिलिटी बताऊं तो वो 7 लाख क्यूबिक मीटर के करीब अवेलेबल है, which is at a price in dollars is around 140 to 180 per cubic meter. Same with Azobe, Paduk, Tali and other species. Now ये सिर्फ गैबान की बता रहा हूं मैं। इसी तरीके से हमारे पास रॉ टिम्बर की अवेलेबिलिटी ROC में भी है। ROC is रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब कस्टमाइजेशन क्या करता है, राइज किस तरीके से आपको टिम्बर में मदद करता है। ओके, इन्वेस्टर कैन प्री-लॉक एनुअल वॉल्यूम फॉर 5 years। कस्टम डायमेंशन मतलब आपको जिस डायमेंशन में वुड चाहिए वो आपके फैक्ट्री तक आपको लाके मिलता है। ड्राइंग, अपकमिंग किल ड्राइंग फैसिलिटी ये चालू हो जाएगा Q4 2025 तक। प्रोसेसिंग पार्टनरशिप, शॉन टिम्बर और विनियर कैन बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। सपोज आप कुछ कर, ये शॉन टिम्बर और विनियर दोनों आपको रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोवाइड की जा सकती है। और अभी के टाइम में जितनी फैक्ट्रीज हैं, अगर आपको ट्रेन वर्क मैन पावर भी चाहिए तो वो भी आपको फैसिलिटेट हो सकता है। नाउ ये सारी चीजें जो है ना, ये इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मेरे पास प्लाईवुड, विनियर की बहुत सारी कंपनीज हैं आज की डेट में।
सस्टेनेबिलिटी एंड कंप्लायंस में एफएससी सर्टिफिकेशन, टीडीएल, जो भी चाहिए सर्टिफिकेशन, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। और इस चीज में हम मदद कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर को जो इसमें इंटरेस्टेड है टिम्बर एज एन अपॉर्चुनिटी। अब हम मेरे पास एग्रो में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। फॉर एग्जांपल पास्ता, अब देखिए अफ्रीका ना was either ruled by French or Britishes। तो पास्ता इज लाइक जैसे हम राइस या रोटी खाते हैं ना, पास्ता वो लोग खाते हैं। आज की डेट में अगर समझ लीजिए, आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर, कि अगर 10 केजी पास्ता चाहिए फॉर वन मार्केट, हम छोटा सी कंट्री है टोगो में, एक हाइपोथेटिकल नंबर 10 केजी चाहिए, तो लोकली प्रोसेस हो रहा है 1 केजी, जबकि पास्ता के लिए मैदा वहां अवेलेबल है और इट इज नॉट अ वेरी बिग, और ये सारा इंपोर्ट हो रहा है, बाहर की कंट्रीज से आ रहा है और उसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। हम आपको ऐसी केस स्टडी दे सकते हैं कि अगर आपको समझ लीजिए 30% 40% मार्केट शेयर एंजॉय करना है, 30% 40% मार्केट शेयर अगर साल 2 साल के अंदर आपको कैप्चर करना है, तो आपको क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको माल कहां से मिलेगा, वो माल आज की डेट में रिटेल में कितने में बिक रहा है, जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसका भाव क्या है, क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगी, और कितने साल में या कितने महीनों में आप 30 से 40% मार्केट शेयर उस मार्केट का आप कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरीके से टमाटो प्यूरी है, उसी तरीके से बिस्किट की अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, अगर आप लोगों में से किसी को ये अपॉर्चुनिटी समझना हो तो। अब भाई मुझ पे आप क्यों विश्वास करिएगा? Who is Arise? Let me explain little bit about Arise to you. Arise as a group के पास 3 वर्टिकल हैं बिजनेसेस के। एक पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, सो हम पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स भी करते हैं। हमारे पास आज के डेट में गैबोन में पोर्ट है, अबिजान में विच इज आईवीसी पोर्ट है, एंड वी आर मैनेजिंग एंड वी आर आल्सो मेकिंग पोर्ट ओवर देयर। देन we develop industrial park in SEZ. We are also developer of infrastructure. When we say developer of infrastructure is basically solar power and all what the project what we are currently doing. Now all these businesses are connected together to make sure that anybody who wants to do business in that market, अगर किसी को भी business करना हो तो उसको roads मिलनी चाहिए, port और airport की accessibility होनी चाहिए, उनकी फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो होल्डिंग कंपनीज हैं, एफ्री एक्सिस बैंक और अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बोथ हैव फंड्स व्हिच इज मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। This is what we try to do as an. This is basically a PPP model, जो हमारे इंडिया में भी we are trying to do. So we work very closely with government, local farmers. We actually design the entire park, but we work closely with government with policy framework and PPP partnership. We also work with local farmers. होता क्या है कि अगर आपको रॉ मटेरियल की अश्योरिटी चाहिए तो रॉ मटेरियल इज डोमिनेटेड बाय कोऑपरेटिव्स और हर किसी को एक्सेस नहीं होता रॉ मटेरियल का। तो उस वक्त क्या करना होता है कि आपको फार्मर के साथ काम करते रहना पड़ता है उनकी ईल्ड ग्रो करने के लिए, तब जाके आपको रॉ मटेरियल अश्योर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी एक पर्टिकुलर विंडो होता है जब आपको माल खरीद के स्टॉक करना होता है। तो हमारी निरंतर हमारा ये प्रयास रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के साथ काम करें डायरेक्टली।
17,000 हेक्टेयर लैंड आज हमारे पास है जो हम डेवलप कर रहे हैं इन मोर देन 14 कंट्रीज। आपका वेस्टर्न अफ्रीका से लेके कमिंग डाउन टू सेंट्रल अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका। आज के डेट में जो ऑपरेशनल है हमारे साथ गैबोन, टोगो, बेनिन, चाड एंड CIV, और बाकी जोन जो है उन पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है और कुछ जगह पे अंडर डेवलपमेंट पे भी है, जैसे फॉर एग्जांपल घाना, सियरा लियोन एंड अदर कंट्री। बिजनेस करने के लिए कुछ चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले कोई नहीं चाहता कि हर रोज कोई आके आपके दरवाजे पे खड़ा हो और टैक्स के नाम पे, ड्यूटीज के नाम पे आपसे कुछ वसूले। तो हर लगभग मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की पार्टनरशिप रहती है। तो हम एक ड्यूटी स्ट्रक्चर हम पहले से ही नेगोशिएट करके रखते हैं, टैक्सेशन नेगोशिएट करके रखते हैं गवर्नमेंट से, और यू नो एनी पॉलिसी, फॉर एग्जांपल आज बेनिन का कैशू जो है ना वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, बहुत सफेद होता है विदाउट एनी मार्किंग, पर वो कैशू नट वहां पे तभी प्रोसेस होगा जब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए पाबंदी होगी उस कंट्री में। तो थ्रू आवर एफर्ट वी हैव बीन एबल टू इंश्योर कि बेनिन का कैशू, रॉ कैशू कैन बी एक्सपोर्टेड, ओनली 15% ऑफ रॉ कैशू कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री। मतलब 85% ऑफ द रॉ कैशू नट विल बी प्रोसेस्ड इन दैट कंट्री इटसेल्फ। तो जब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होता है ना, तो जॉब्स भी एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। आज की डेट में अफ्रीका का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? अफ्रीका का कंसर्न है कि उनको लोगों को जॉब देना है, उनकी डेमोग्राफी बहुत यंग है, तो नंबर ऑफ जॉब्स हैज टू गो अप, एंड फॉर दैट उनके पास रॉ मटेरियल है और वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो रॉ मटेरियल वहीं पर प्रोसेस हो। अगर अपॉर्चुनिटी वाइज देखी जाए तो अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का डेटा उठा के देखते हैं अफ्रीका का, कोई भी चीज जो इंपोर्ट हो रही है वहां पे वो अपॉर्चुनिटी है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी का रॉ मटेरियल अगर आपको वहां पे अवेलेबल है तब तो वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है और एक्सप्लोर करना चाहिए। सो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम which will give end-to-end guidance in terms of setting up any business. फंड्स में भी बहुत सारे केसेस में हम मदद करते हैं अपने इन्वेस्टर लोगों की। 100 में से 70 रुपए तक की, 60 से 70 रुपए तक की मदद हो सकती है। पर अफ्रीका में भी जिस तरीके से इंडिया में स्क्रूटनी है विथ रिगार्ड्स टू फंड, कि जैसे बैंक यहाँ पे सारी चीजें चाहती हैं, आप कंप्लायंट होने चाहिए, आपके पेपर्स बराबर होने चाहिए, उसी तरीके से अफ्रीका में भी। बट प्रोजेक्ट वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल का 60 से 70% आपको फंड्स वहां मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज समवेयर बिटवीन 8 to 10%। और अगर प्रोजेक्ट साइज बड़ा है तो उसमें भी हम शायद लोगों की मदद कर सके, बट दैट इज द केस टू केस ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिस। सो अगर आप देखो तो लोकेशन जहां पे आपको सेटअप करना है, आप क्या ड्यूटीज पे करोगे अपने कंस्ट्रक्शन फेज में, या फिर जब आपका प्रोडक्शन शुरू होता है तो पहले कुछ सालों में आप क्या पे करोगे। आपको अगर पॉलिसी वाइज अगर कुछ फेवर चाहिए गवर्नमेंट से, जो हम करते रहते हैं, अगर किसी कंट्री में कोई रॉ मटेरियल को हम चाहते हैं कि ना जाए बाहर, तो हम कोशिश करते रहते हैं। कुछ जगह हम सफल होते, कुछ जगह हम सफल नहीं होते, बट दैट्स आवर अटेम्प्ट। और आज की डेट में हमारे पास करीब 500 कंपनीज हैं जो हमारे साथ हमारे जोन में हैं। सो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल जोन मैंने बताया, लैंड साइज जो पॉसिबल है 0.5 हेक्टेयर से लेकर 30 हेक्टेयर्स तक। आज की डेट में बड़ी से बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, स्टील की कंपनी सेटअप हो रही है, शुगर कंपनीज हमसे बहुत अग्रेसिवली बात कर रही है, शुगर इज वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, एग्रो, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल प्लास्टिक, द वेस्टेज रिन्यूएबल की कंपनीज काम कर रही है। सो मोस्टली
a lot of companies are already working with us. जब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा जोन के, ओके, तो जो स्केल ऑफ फैसिलिटी या जो जगह है वो प्रॉपरली हाई स्टैंडर्ड है. आज की डेट में भी आप यहां बैठकर मैप पे एक्चुअली हर जोन देख सकते हो. सो टेक्नोलॉजी हैज बीन one of the key parameters what we have opted for. There is residential zone which is being developed inside, truck parking, container yards, commercial. अब अगर आप अकेले कोई जगह सेटअप करते हो, सपोजिटली आपने लैंड ले लिया, लैंड बहुत सस्ता है वहां पे, लैंड ले लिया और आप अपना फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो परमिशन में जो टाइम लगता है, सी पैसा कहाँ वेस्ट होता है? पैसा वेस्ट होता है जब टाइम वेस्ट होता है, राइट? आप कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो, we can speeden up that process, we can bring a lot of efficiency in that project if of initiating and finishing the project actually. आप क्यों बनाओगे कमर्शियल जोन, कंटेनर यार्ड, रेसिडेंशियल जोन या ट्रक पार्किंग खुद के लिए? इट्स एडिशनल कॉस्ट, बट हर जोन में हमारे पास ये फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है. 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. जोन के बाहर इलेक्ट्रिसिटी 16 घंटा, 17 घंटा, किसी जगह 12 घंटा इलेक्ट्रिसिटी रहता है, बाकी टाइम जनरेटर पे चलता है. जनरेटर पे जो चला रहे हैं उनकी मार्जिन पे कितना फर्क पड़ रहा है ये खुद वो धंधे वाला जानता है, या आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी मिलना इंडस्ट्रियल भाव पे और जनरेटर चलाने में कितना फर्क पड़ता है. रॉ मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल में अब मैं सिर्फ वुड में लोगों को मदद करता हूं. मैं वुड में क्यों मदद कर सकता हूं कि मेरे पास लाइसेंस, मेरे पास परमिशन है ऑफ 3.2 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट का. सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद से करके देख लो. और हर चीज के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है. यहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको हर चीज जोन के अंदर ही मिल जाता है. सेल्स एंड मार्केटिंग में सपोर्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको टेक्सटाइल के केस में बताया कि हम थोड़ा हैंड होल्डिंग करते हैं इनिशियली. लेबर के लिए टेक्सटाइल में मैंने आपको बताया कि हमने जीटीसी चालू कर रखा है और जो फैक्ट्रीज आज की डेट में वहां पर हैं वो 60% एफिशिएंसी पे वर्क कर रही है. ये बहुत इजी नहीं है वैसे ना. इंडिया में भी मैं साउथ गया था तो पूरा का पूरा मैन पावर उड़ीसा से आता है. सूरत में भी मैन पावर टेक्सटाइल में बहुत बड़ा इश्यू है. वहां पर 8,000 रुपए महीने में आपको एक लेबर मिलता है. ओके, दैट्स अ मिनिमम वेज एक्चुअली. नाउ वो बिजनेस साइड या इंफ्रास्ट्रक्चर साइड था जो आपको सपोर्ट मिलता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्स एंड बेनिफिट, so no export duty to US, Europe, ECOWAS as other region. This is only from West Africa I'm talking about. No import duty on machinery and raw material. No corporate income tax and dividend tax in SEZ. Exemption on business license tax. अब इन सब चीजों को अगर मैं नंबर में डालकर देखूं तो ये प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट, कितना सेविंग देगा आपको, you will know about it. Cost benefit and ease of business. This is I've already explained. ये मेरे कुछ ब्रांड्स हैं टेक्सटाइल में, एग्रो प्रोसेसिंग में, टिम्बर में और मीट में. ये हमारे खुद के भी ब्रांड्स हैं जो हम आज की डेट में रन कर रहे हैं. This is Gabon. Gabon is second largest economy in CIMAC region. It's a सेंट्रल अफ्रीका. इस तरीके से जोन दिखता है. नाउ दिस इज द लैंड, दिस इज द एंटायर पिक्चर ऑफ गबन एज अ जोन. लार्जेस्ट पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री इज इन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज in our zone. Akiba is our wood brand in terms of furniture. Togo में, this is how Togo zone looks. Warehousing, ICT platform, garment training center, Togo soya, Togo organic. ये कंपनीज हैं जो वहां पे आज की डेट में है. मैं कुछ की फोटोज दिखा रहा हूँ और कुछ कंपनीज के नाम भी आपको दूंगा.
बेनिन में गारमेंट फैक्ट्री, वेट की फैक्ट्री है, ऑर्गेनिक सोया की फैक्ट्री है, okay. Now this is actually basically details of all our zones. I'll just skip that. ये एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में जो अफ्रीका में तुरंत सर्विस हो सकती है। पीवीसी पाइप, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स, वाटर प्रूफिंग, सेरेमिक टाइल्स, ऑटोमोबाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हेयर एक्सटेंशन। एक्सक्यूज मी, थोड़ा बैक करेंगे। थैंक यू। Now this is basically the other companies which are there in our zone. Star Eyes from Sri Lanka, B5 is from Ghana, Lebanese company है, Dubai, China, UAE, India से Century Ply. These are bigger factories. Total Energy is also there. Greenply is also over there. And there are more companies from India actually. So the impact what we have been able to create till date is we have been able to bring $7 billion worth of foreign investment in Africa. 19 जो companies हमारे पास 400 से ज़्यादा company हैं, they are representation from 19 countries, from 47 different industry sectors. And we have created more than 50,000 jobs. Yeah. So, just तो प्रेजेंटेशन में बहुत लंबा नहीं करना चाहता, प्रेजेंटेशन एक्चुअली बहुत बोरिंग हो जाता है, बट अगर आप में से किसी को भी किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप करना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड जैसा मैंने बोला कि अगर किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है तो वी कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। हम कोई इंडिविजुअल नहीं है, वी आर अ कॉर्पोरेट फर्म, वी आर मोर देन 1600 डायरेक्ट एम्प्लॉयज जिसमें बहुत सारे इंडियन हैं। हमारा हेड ऑफिस दुबई में है और ऑफिसेज इन अदर 15 कंट्रीज विच वी आर ऑलरेडी देयर। इंडिया का हेड ऑफिस दिल्ली में है, अहमदाबाद में उमंग इस स्टेशन में बॉम्बे में बैठता हूँ और बहुत बड़ी डिज़ाइन टीम है और रिसर्च टीम है बैक एंड में जो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मुहैया करा सकती है फॉर अ सीरियस मैन्युफैक्चरर। Thank you very much. I really hope that I get to hear some questions from you. Thank you, Manish bhai. It was indeed a very, superb and very informative presentation which you made it. Before we go for a question answer session, I also, found many things during this presentation, and one most important point which he told that I kept it as a note. That see, anybody if he wants to go and do the business with a country like Africa, so the first point which he raised, that I understand that you need to identify what are the import of that respective country. So once you understand that okay, this country is importing this product, if you have that products and if you think that okay, let me go and start manufacturing in this country, probably each and every country is action towards reducing their imports, which ultimately helps you. The second point which I understand, that we have to identify the deficiency of that respective zone. There are certain countries who is having energy deficits, so our solar people can go and try to generate the energy. It could be a good one. The
part like, that what he has explained, the labor cost is very less in Africa. You get easily labor in that region, so the cost of production would have been reduced, and you can, serve to the various place. The one more point which he has explained, like ample of natural resources they do have. Those who are thinking for mining, or those who are right now facing a problem of raw material in India, they can certainly plan their production unit in that country so that they get easily raw material available, and again the cost of production would have been reduced. So these are the lucrative point which he has discussed. And as far as I'm just recalling one small, my own examples I would like to quote here. Just 2 days back, I was interacting with one of my my friend's son, aging approximately 22, 23, and he told me that I want to go somewhere outside India and want to do some business. I said how and why. The answer which he has given me, it was very catchy and rather relevant with our today's episode, I can say. He told me that, uncle, you are the people, or rather he was quoting his father, that he has started his business in 1991 and today in 2025 my father is, let's say, 1 billion corporate. But I don't want to carry his business. My younger brother will take his business continue. And I want to go into that country which is having a status of 1991. So at that time I told him, I think according to me, Africa is today's 1991 of India. And the second most important thing that what I am looking after this presentation, that in 2030, next 5 years, we and Africa will match on one platform. So just consider in next 5 years, the opportunity of Africa would be like within next 5 years, they will be developed what India has developed in last 30, 35 or 40 years. So with this note, I think let us start the question answer session, or Sanjay Punjabi ji, if you want to add on. So, normal general questions, I'll not go for a specific question. I know my audience. So if I'm not ready for manufacturing, but ready for having a business with Africa for a few years or for a few months, and then I will consider for the manufacturing. In that case, what help will you or what support will you extend? Correct. So, sir, we are largely for manufacturers. Okay, that is our line of business. Mostly, जो अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है ना, वो पहले से ही उस मार्केट को एक्सपोर्ट कर चुका होता है. उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की कोशिश करता है, और उस वक्त हम उनकी मदद करते हैं. ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, हम वहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं तो ट्रेडिंग एज अ बिजनेस इज समथिंग व्हिच वी डू नॉट सपोर्ट, क्योंकि दैट इज एंटायरली अपोजिट टू व्हाट वी आर डूइंग. ओके, तो ट्रेडिंग के मामले में अब जैसे मैंने बोला, आज की डेट में हमारे पास 500 कंपनीज हैं. 500 कंपनीज इंडिया से भी माल मंगवा रही हैं, चाइना से भी माल मंगवा रही हैं. तो बहुत लोगों का भला हो सकता है. अगर आप में से कोई उठ के वहां जाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो वो धंधा किसको देगा? अगर उसको इंडिया से माल मंगवाना है तो आपको देगा. उस केस में ट्रेडिंग का फायदा होता है. इसके अलावा हम इस चीज में इसलिए नहीं गिरते हैं सर, क्योंकि दैट इज नॉट आवर लाइन ऑफ बिजनेस. और परेश सर, मैं आपको सोलार का आपने जो अभी बात बोला, एक हफ्ते पहले पूरे यूएस को केटर करने के लिए सोलार पैनल के लिए फैक्ट्री डल रही है तंजानिया में, हमारे जोन में. पूरा का पूरा यूएस विल बी सर्विस्ड. इट्स अ चाइनीज कंपनी. They will make solar panel over there, and that is primarily to cater to the entire US market. The size of project is around $50 million, okay, and 100 hectare of land what they are taking. That's the size of business. Fertilizer, 67% of land is available for agriculture, yet to be जहाँ पे खेती हो रही है. मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी फैक्ट्री का, पर वो
नेचुरल गैस हमारे जोन में, बहुत सारे जोन में अबंडेंट में अवेलेबल है. तो दे आर पुटिंग अप, दे आर मेकिंग अ फर्टिलाइजर प्लांट ओवर देयर. ओके, स्टील की बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी कंस्ट्रक्शन फेज में, जो सिविल वर्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की. ऑटो कंपोनेंट, अभी आज की डेट में ऑटो में क्या होता है कि पैक चीज़ें जाती हैं एज एन एसक्यूज एंड वो वैसे जाके बिकती है वहाँ पर. बट थ्री व्हीलर में अगर आप देखो तो जैसे इंडिया हुआ करता था आज से 20 साल पहले, अफ्रीका में थ्री व्हीलर्स का रिक्वायरमेंट वैसे ही. सर आप ऑटो में पूछ रहे थे, ओके, तो स्पीरो का आपने नाम सुना होगा. So they are setting up a very large factory in our zone in Nigeria right now. Okay, so सोलर के बारे में मुझे बताना और ये बिजनेस के बारे में, तो आप लोगों के पास और कोई सवाल हो तो पूछें. Just one thing to add what Manish was saying. See, there are two type of opportunities which we can see, and our basically China, which is grabbing, that you can consider Africa as a market, or you can step in Africa for the global market. So it's up to us, based on their product line, they can decide. But these are both the opportunities are there. If you are only limiting your product line for the African market, yes, that is also the opportunity, which is mainly into the SMEs and fertilizer, all these things. But like garment, textiles, automobile, these all the industry segments which can be served from Africa to US, Europe, these developed countries. Because what basically after these trade issues which are coming up, which US government is highlighting, so many Chinese companies, they are coming and just starting the factories there, or trying to set up their units in Africa so that they can serve this Africa and Europe market. Because right now maybe this issue may get postponed, but ultimately this will come. Not now, but maybe in future definitely it will come. So they want to diversify their footprint, and that's what basically two types of activities we can look at. So it is open for everybody. Please raise your question. And before that, I mean, if you can, tell your name, it would be better. Please, one by one. I mean, anybody is having a question. Yeah. Good afternoon. My name is Gautam Raj Hindustani. Actually, मैं भी अफ्रीका में बिजनेस कर रहा हूँ. But that was my question is by Manish Bhai that we are in the Copper Belt area. In as you mentioned here also you have some infrastructure project in Congo, but in Kinshasa. So Congo is the biggest country and like one of the largest, second largest country in Africa. Is you know that, but there is a lot of minerals. Especially China is, they are also doing very big business, big mining business there in Congo. Now we have big problem with the infrastructure. As you mentioned, there is a industrial infrastructure की बहुत ज़रूरत है. तो जहाँ पर मैं आता हूँ कटांगा प्रोविंस है. It is the largest copper and जो वहाँ पर ज़्यादातर copper mining companies है. तो कोबाल्ट और कॉपर का बिजनेस वहाँ पर बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जैसे मैं भी थोड़ा इंडस्ट्रियल लैंड का बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो उसमें हमें एक 500 हेक्टेयर एरियाज में वहाँ पर ये अगर इंडस्ट्रियल जो जोन बनाना जैसे आपने मेंशन किया, तो हाउ इज पॉसिबल देयर एंड स्पेशली वहाँ मतलब 100 मेगावाट की तो डेफिसिट अभी भी है जहाँ जो सिटी में हमारे आसपास में इंडस्ट्रीज है वहाँ पर. तो अगर इसमें सोलार का क्या पॉसिबिलिटी है और व्हाट एल्स हाइड्रो का क्या हो सकता है? थैंक्स, इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि आप ऑलरेडी वहाँ पे है और इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं. सो बेसिकली जो हमने बोला पहले भी, जो मनीष ने एक्सप्लेन किया, वी आर डेवलपिंग अ इकोसिस्टम. जैसे गैबन में हमने आपको एग्जांपल दिया कि वहाँ पे टिम्बर इज मेन रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल. तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का देयर वाज लॉट ऑफ इशू. सो वी हैव डेवलप्ड द कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो उससे बेसिकली टू सप्लाई द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री. सो वी
develop a complete ecosystem, starting from infrastructure, starting from energy. So that's all we can do. The same thing we can look into it, because we specific for the Congo. We can get back to you about this particular region which you are saying. We can get back to you what type of infrastructure we can provide, or how we can support and how we can work with you. We can look into that, and we can get back to you on this. DRC सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है, पर आपको पता है यूएस $10 बिलियन डालकर कॉरिडोर बना रहा है फ्रॉम डीआरसी टू कॉन्गो पोर्ट, लोबी टू तंजानिया। एग्जैक्टली, जस्ट कि वहां का माल निकालकर कैमरून पोर्ट पे लेके जाएंगे और वहां से माल निकालेंगे। एंड दिस प्रोजेक्ट इज गोना गेट ओवर बाय 2030। नाउ हम ये पूछते हैं ना जब, इज इट सेफ? वर्ल्ड में सप्लाई उतनी है भाई साहब, और रिस्क तो लेना पड़ेगा, पैसा बनाना है तो। कॉपर के लिए सर डीआरसी में हमारा अभी किंशासा में है, और एक दो जगह और हम सोच रहे हैं, बट अभी हम आपको इसके बारे में नहीं बता। जैसा तुषार भाई ने बोला कि वी कैन डेफिनेटली एडवाइज यू कि क्या हो सकता है। पावर प्रोजेक्ट में जैसा आपने बोला कि 100 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का डेफिसिट है, तो आप मेरे साथ ये डिटेल शेयर करिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सोलर प्लांट पावर का हम वहां खुद भी कर रहे हैं। तो वी विल जस्ट सी टू इट, आप अपनी टीम से बात करेंगे, इट्स अ सिस्टर कंसर्न, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो बताएंगे। पर कॉपर के लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तंजानिया में हमारे जोन से 51 किलोमीटर पे कॉपर माइन आइडेंटिफाइड हुई है, 50 to 60% प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब जो माइन से पोर्ट तक के लिए डायरेक्ट लाइन, रेलवे लाइन बिछी हुई है, जो अब ऑपरेशनल हो गई, पहले पैसेंजर के लिए थी, अब कार्गो के लिए भी हो गई है। तो मेरे पास अब ये क्या होता है, माइन के जो लाइसेंसेस होते हैं ना, ये टाइम पीरियड के लिए होता है। कुछ प्राइवेट लाइसेंसेस होते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट देती है। तो अगर मुझसे अगर कॉपर के बारे में कोई, अगर आज तंजानिया में मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ कॉपर में और बॉक्साइट में भी, पर मेरा माइनिंग में क्या होता है कि आप प्यूरिफिकेशन करते हो माइन के बाजू में, तो आप 70% तक प्यूरिफाई करोगे माइन के बाजू में। मेरा इंटरेस्ट है जब आप उसको स्मेल्ट करोगे, स्मेल्ट करने के लिए आपको मेरे जोन में आना पड़ेगा, जहां पे आप 99% प्योरिटी ऑब्टेन करते हो और उसके बाद बेचते हो। ओके, तो अगर कोई स्मेल्टर आप लोगों की नजर में हो जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हो अफ्रीका की किसी अपॉर्चुनिटी को, तो आप प्लीज मेरा नंबर उन तक शेयर करें। दिस इज कॉपर माइन, मेरे पास अच्छा खासा अभी रिजर्व अवेलेबल है विच कैन बी एड्रेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड कॉपर और बॉक्साइट के लिए मैं आप लोगों को बोल के रख रहा हूँ, बिकॉज ये प्रोजेक्ट पे अभी मैंने काम किया है एंड आई हैव दैट प्रोजेक्ट रेडी, टू इट कैन बी ऑफ हेल्प टू एनीबॉडी हु इज लुकिंग आउट फॉर। यस, एनीबॉडी? सर मैं गारमेंट सेक्टर से हूँ, गारमेंट्स की एसेसरीज में बना रहा हूँ, जैसे जस्ट लाइक ट्रिम्स, नेरोवोवन्स, टेक्निकल्स, नेरोवोवन्स सब बना रहा हूँ। और पैन इंडिया में मेरा सप्लाई है डायरेक्ट फैक्ट्री, तो मैं वियतनाम भी मैं दिया हूँ, दुबई भी देता हूँ, और अफ्रीका में जब जैसे आपने बताया कि बहुत सारी फैक्ट्री है, तो क्या मेरे लिए कुछ पोटेंशियल है क्या? बिल्कुल, आप फैक्ट्री डालिए, आपको अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट आपसे जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना अब्जॉर्ब हो सकता है। दिस इज माय वर्ड टू यू नाउ। सर इसका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए तो डिसेंट्रलाइज है वो सब, तो मैं कलेक्ट करता हूँ, मैं वियतनाम से भी रबर मंगाता हूँ, मलेशिया से भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, फिर कॉटन अपने यहाँ से लेता हूँ मैं, कॉटन से भी, स्पेंडेक्स से भी, पीपी, पॉलिएस्टर, 8-10 टाइप का मैं बना रहा हूँ। तो जो वहाँ पे इतना मटेरियल, रॉ मटेरियल मुझे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आपको क्या क्या रॉ मटेरियल? रबर चाहिए, राइट? आपको कॉटन चाहिए, और क्या आपने बोला? स्पेंडेक्स। जो चीज आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हो वो आप किसी और कंट्री में भी इम्पोर्ट करोगे ना, उस केस में आपको ये चाहिए कि आपको रॉ मटेरियल पे क्या छूट मिल रही है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे क्या छूट मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो भी रॉ मटेरियल या मशीनरी इम्पोर्ट करते हैं उस पर आपको ड्यूटी फ्री ये मिलता है, बट आपके लिए तो प्योरली मार्केट आज की डेट में अवेलेबल है।
जितना माल बनाइएगा उतना माल एब्सॉर्ब होगा। आज मैंने आपको यहाँ अभी इसी प्रेजेंटेशन में कम से कम 3000 मशीन की फैसिलिटी का मैंने आपको बताया, जो 3 फैक्ट्री में। ऐसे मेरे पास टेक्सटाइल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए टेक्सटाइल में क्या होता है ना कि सबसे पहले कोई भी देश जब डेवलप हो रहा होता है तो टेक्सटाइल एज इंडस्ट्री ग्रो करता है, क्योंकि इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स। और उसी तरीके से अफ्रीका में बहुत सारे एरिया में टेक्सटाइल के ऊपर स्पेशल फोकस है, क्योंकि कॉटन भी है उनके पास, ठीक है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम क्रूड भी है आपके पास। तो रॉ मटेरियल में आपको इश्यू नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपको इश्यू नहीं आएगा, और अगर आप कुछ इंपोर्ट भी करते हो तो उस पर आपको ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर यही फाइनल प्रोडक्ट्स में यहाँ से बनाकर एक्सपोर्ट करें और गारमेंट्स फैक्ट्री को डायरेक्ट अप्रोच करके अपन प्रोवाइड करें तो सर इसमें मेरा क्या फायदा है? मतलब मैं तो आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप बड़ा सोचिए, आप बड़ा सोचिएगा तो आप पाइएगा कि मैं आपका 1 पॉइंट सोल्यूशन हो सकता हूँ। कितना लगेगा? मैं एक बात बताता हूँ, जो प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, देखिए 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट साइज में अगर आपको 60 से 70% फंड की मदद हो जाती है तो बेसिकली आपको क्या, कितने पैसे चाहिए? आपको 5 करोड़ चाहिए चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वर्किंग कैपिटल फॉर फर्स्ट 2-3 years। ओके, सो जब ये सारी चीजें करके मिल रही है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये जानते समझते कि अगर एफ्टा इंप्लीमेंटेशन फेज में है, एफ्टा इज वन मार्केट फॉर 54 कंट्रीज। आप ये मान के चलो गारमेंटिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मैं यहाँ आप लोगों के सामने जब हूं तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 2 गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर है जिसको मुझे लेट आउट करना है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी है। ओके, अगर किसी को भी गारमेंट में मदद चाहिए या कोई भी एक्सप्लोर करना चाहता है तो अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको ब्रांड्स ऑलरेडी दिखाए जो जोन में आके इंटरेस्ट दिखा चुके हैं कि मुझे इतना माल चाहिए, जो आज की डेट में सर्विस नहीं हो पा रहा है। तो वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन कम एंड सेट अप अ गारमेंटिंग यूनिट। और अच्छे खासे इंडियन अपैरल वालों से भी बात चल रही है हमारी, जो करना चाहते हैं। जस्ट टू ऐड अगेन, अभी नेक्स्ट 2 साल में जो टोगो और बेनिन में जो हम टेक्सटाइल डेवलप कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 साल में 15 से 20 हज़ार मशीन ऑपरेशनल हो जाएंगे। और 20,000 मशीन्स ऑपरेशनल होने के बाद इकोसिस्टम जो है, नाउ आवर फोकस इज टू डेवलप द इकोसिस्टम। जैसे आपके इलास्टिक हो गए, ट्रिम्स हो गए, देन थ्रेड्स हो गए। सो नाउ मैं लास्ट मंथ ही श्रीलंका गया था, तो एक कंपनी है A&D थ्रेड्स, आई डोंट नो आपको शायद, इट्स वेरी बिग कंपनी। तो वो लोग अभी हमारे इंडस्ट्रियल जोन टोगो में वो लोग चालू कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट इन नेक्स्ट 2 to 3 years देयर विल बी अ अपॉर्चुनिटी, देयर विल बी ऑलमोस्ट 20,000 मशीन्स विल बी ऑपरेशनल। तो और यहाँ से अगर आप वहाँ पे सप्लाई करना चाहोगे, देन यू विल बी वन ऑफ द पर्सन। ओके, बट अगर आप वहाँ पे रहोगे, then for all the companies it will be beneficial for them to source from you, because then they don't have to keep the inventory, they don't have to depend on the timeline कि यार इंडिया से import करो, बाहर से import करो। So अगर आप वहाँ पे रहोगे, that advantage you will get, and I think 40-50% will be very less. You will get more than 80 to 90% market share if you start putting your footprint there. Good evening, I am Samit Desai. Presently we are into manufacturing in electrical capital goods. We are already working in African market since last 5 years. We are planning to set up business and we have explored towards the countries also. But what kind of service do you provide? Means right from setting up the business, registering business, and then maybe for my product we need lot of transportation requirements and all. So do you help us identify the site where we can establish our setup, and then also help us in the logistics and all? So what kind of services all you can provide?
Yes, sir, we can provide you a complete solution, identifying the site, then provide a complete logistic solution, whether it is directly from India to Africa, within Africa, all the logistic solution we can provide. You don't have to come to Africa. So आप यहाँ पे बैठ के हम आपका कंपनी रजिस्टर करके सारा रजिस्ट्रेशन करके आपको डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं. आपको वहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं, आपको आके सिर्फ लैंड सिलेक्ट करना है, बाकी सारा सेटअप हम आपको करके दे सकते हैं. तुषार जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा है स्किल डेवलपमेंट के लिए. तो कॉन्गो में डायमंड निकलते हैं, गोल्ड भी निकलते हैं, लेकिन वहाँ कोई जो भी रो फॉर्म में जाता है अभी तो इंडस्ट्रियल डायमंड ज़्यादा है, और अंगोला है जहाँ जेम क्वालिटी के डायमंड निकलते हैं. दोनों कंट्रीज के अंदर स्किल्ड वर्कर नहीं है. वहाँ की गवर्नमेंट और ये सब वर्ल्ड बैंक की प्रेशर में पॉलिसीज आ रही है कि भाई यहाँ प्रोसेस करो जो भी रॉ मटेरियल न जाए. तो उसके लिए सूरत इज लाइक ए सोर्स ऑफ डायमंड का है ही अभी, और अभी थोड़ा डायमंड में मंदा भी चल रहा है. तो यहाँ से डाइवर्सिफाइड होने के लिए सूरत के लोगों को अगर वहाँ ले जाना है तो हमारे वहाँ कॉन्गो गवर्नमेंट और अंगोला गवर्नमेंट रिक्वायर्ड कि उनको ये स्किल्ड लोगों को स्किल करना है. तो यहाँ हमारे पास नो हाउ है, टेक्नोलॉजी भी है. तो वहाँ ये जो फंडिंग के लिए, क्योंकि दोनों जगह पर हमने देखा $10 मिलियन के आसपास के ये प्रोजेक्ट हो सकते हैं. तो इसमें क्या मदद कर सकते हैं और कैसे हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं? सर, इसके ऊपर मैं अभी आपको फर्म आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट यस, व्हाट वी डिड, जैसे टोगो और बेनिन में हमने किया कि गारमेंट में जो स्किल डेवलपमेंट लगता है तो हमने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके ट्रेनिंग स्कूल हमने ओपन किया हमारे इंडस्ट्रियल जोन में, और वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं. सो इफ सिमिलर अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन अंगोला और कॉन्गो वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट कमिट. हम लोग चेक कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन दे आर ऑल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो सब में गवर्नमेंट इज अ पार्टनर. तो जो ये स्किल डेवलपमेंट है, देन जो भी कोई प्रोग्राम चलाना है, वी कैन इन्फ्लुएंस मच बेटर देन एनीवन एल्स. तो डेफिनेटली इफ देयर इज अ अपॉर्चुनिटी वी कैन वर्क ऑन दैट. माइंड बिजनेस जो है ना, माइंड बिजनेस जो है ना, ये बहुत ट्रिकी बिजनेस है. बहुत लोग ना उससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं. गवर्नमेंट भी, मतलब ऐसे आप खुद हो उसमें, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा करप्शन माइंड को लेकर होता है. बहुत सारे गुजराती भाई हैं मेरे जिनसे भी मिला हूँ, उन्होंने पैसा डाला है किसी लोकल पार्टनर के साथ, एंड 2 साल 3 साल हो गए, पैसा फंसा हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है. नाउ इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पार्टनर आइडेंटिफाई करिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हो. ओके, और पार्टनर आपको क्या क्या चीजों में मदद कर सकता है. स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जैसा तुषार भाई ने बोला दैट अगर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा सर, तो वो ये आपको डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये राइट लोगों के साथ डिस्कस भी होगा. पर हम ऐसे, मतलब एज एन व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम, ये उनके लिए भी कंसर्न है. और अगर हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस. पर इसके लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, और वी विल मेक श्योर दैट वी मीट द राइट पीपल फॉर दैट. ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं. पर आप फैक्ट्री हमारे जोन में डालिएगा. What about healthcare industry? Very big, as in मैं अभी किसी के साथ सिरिंज की बात कर रहा हूँ, सिरिंज फैक्ट्री, एज इन सिरिंज बनते नहीं है, ग्लव्स, पाइपर्स, आईवीसेट्स, जो भी एपीआई आ रहा है सब चाइना से, इंडिया में भी चाइना से ही आ रहा है, और वहाँ भी चाइना से ही आ रहा है आज की डेट में. सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तुषार भाई अपने आप का ऑपरेशन कराने, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए इंडिया. अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन इतना नॉर्मल ऑपरेशन है जो कहीं भी हो सकता है, बट ही कैन नॉट ट्रस्ट दैट. कोई भी, मतलब आप दुबई भी ट्रस्ट नहीं कर सकते उस मामले में, हेल्थ केयर के मामले में. तो ये सारे गैप्स हैं जो फिल किया जा सकता है. ये कोई मॉडल वहां जहां बन नहीं रहा है. अगर आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट लाइक उठा के अगर देखोगे कि ये सारी चीजें बाहर से आ रही है, और ये बनाने में लगता क्या है. आप सर हेल्थ एंड वेलनेस में आप क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर यू डूइंग? Well, we are into stem cell, exosome and peptide business. बाप रे. So अमेरिका से है.
He's from USA. I'm from USA, and then we are tying up with some of the companies in Malaysia and Hong Kong, and they are already researching different, way to handle all this. And if we maybe do the research and development over there, it could be much better. That's the way I feel. Because people who has money, they can afford, instead of going to Malaysia, we have a lot of people from here go to Malaysia. They go and get treated over there for their particular problems, and also for longevity, age, anti-aging, things like that. And people, over there who can afford those kind of services, we have a solution for that. Cancer, kidney, diabetes, all that, we already have the solution for those kind of disease. लवली सम अपॉर्चुनिटीज आई हैव, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को तो जानते भी नहीं है और होते भी नहीं है, और अच्छी खासी लंबी उम्र जीते हुए, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो खाने में ऑर्गेनिक, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड, आपकी इंडिया की भाजी का कोई स्टैंडिंग नहीं है यूरोप मार्केट में, पर आपकी अफ्रीकन भाजी या फ्रूट्स प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है. ओके, बट सर मैं हेल्थ एंड वेलबींग में बहुत अपॉर्चुनिटी है. कुछ आपका ईमेल आईडी पे कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली शेयर करूंगा. देखिए, हो सकता है कि बहुत कम एफर्ट में अच्छा खासा धंधे का प्रोविजन बन जाए. अच्छा, यूएस में नहीं पहनते हैं क्या ये सारा, मतलब है तो ये तो यूएस में पहनते हैं ना, तो why not? I am from USA, I'm wearing it. लवली लवली. हमारा कस्टम मैन्युफैक्चरिंग है, पर्टिकुलर वी आर इनटू इंजीनियरिंग, डाइज, डाई मोल्ड, प्लास्टिक के लिए मोल्ड्स वगैरह, एंड पर्टिकुलर शीट मेटल्स की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए जो डाइज लगती है, मीन्स टोटली हमारा कस्टम सॉल्यूशंस का काम है. तो वहाँ के लिए हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं. कि अभी हमारे पास एक इंक्वायरी आई थी पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम मोल्ड के लिए, जो एल्यूमिनियम फिगाल के पर्टिकुलर जो मोल्ड के लिए इंक्वायरीज आती रहती है. तो वहाँ पे ऐसे कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे तो अपॉर्चुनिटीज कैसे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आपने नाम सुना होगा मदरसन सुमी का. ओके, जापानीज कंपनी है, दे आर इनटू ऑटोमोबाइल. ओके, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉपर कैथोड नहीं मिल रहा है, तो कॉपर कैथोड बनाना चाहते हैं. तो पर माइनिंग में नहीं घुसना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई कॉपर उनको माइन करके दे. ओके, नाउ यू सेड मैं यहाँ पे कॉपर कैथोड का नाम लिया, बट एनीथिंग विथ रिलेटेड टू डाइज, मोल्ड, आई एम टॉकिंग एनी इंडस्ट्री, all these components are going to be used. Okay, आज मेरे पास 500 कंपनीज हैं. आप ये लिख के लो, और ये 500 कंपनीज तब है जब मेरे पास आज 3 छोटे छोटे जोन ऑपरेशनल है जिसमें कंपनी है. मेरे सारे बड़े मार्केट अभी खुले हैं, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया, DRC, ROC. 5 साल में मेरे पास 1500 कंपनीज हुई. ओके, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग टूल्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है. मैं पंप्स वालों से बात कर रहा हूँ, सबमर्सिबल पंप वालों के साथ बात कर रहा हूँ बहुत अग्रेसिवली, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ओवर देयर. और अगर आप मेरे को अपना HS कोड और अगर प्रॉपर अपना लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दोगे, भाई वी विल बी एबल टू सर्विस यू, लेट यू नो कि क्या रिक्वायरमेंट है आज की डेट में और किस कंट्री को आपको ऑप्ट करना चाहिए. बेसिकली देखा जाए तो जो भी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हो रही है, फॉर एग्जांपल स्टील हो या कोई गारमेंट हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बड़े स्केल में सेटअप हो रहा है, तो वहाँ पे निश अगर बेसिक देखा जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट है. तो मेरा ये कहना है कि पर्टिकुलरली लार्ज स्केल पे हमारा सेटअप पॉसिबल नहीं है, राइट. वी आर माइक्रो स्मॉल लेवल पे. जैसे कोई अगर प्लास्टिक के पार्ट्स मास लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहे तो उसको एक वन टाइम ही पर्टिकुलर वो मोल्ड, वो डिजाइन चाहिए होता है, राइट. तो मोस्टली वहाँ पे देखा है हमने कि भाई चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं जो मोल्ड्स है, डाई टूल्स है, राइट. और मास प्रोडक्शन जैसे अगर इंजीनियरिंग में कोई भी अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स में अगर फॉर एग्जांपल एक बाइक ले ले तो बाइक का एक पार्ट है,
तो पार्ट्स मास प्रोडक्शन में उनको प्रोड्यूस करने हैं तो डाइस चाहिए होती है, तो वो हम माइक्रो लेवल पे हम वहाँ पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी डिजाइनिंग हो तो उस सेंस में मैं देख रहा हूँ कि भाई एक माइक्रो लेवल पे कोई भी यूनिट अगर सेटअप हो रहा है तो वहाँ पे बैकएंड में जैसे ये हम डिजाइन और मोल्ड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स तो वहाँ पे आते नहीं होंगे, या फिर मशीनरी आती है तो कम्प्लीटली बिल्ड मशीनरी मोस्टली नहीं आती, क्योंकि कुछ ना कुछ सोर्स वहाँ पे लोकल लेवल पे करना ही होता है। अगर प्रोडक्शन के लिए भी कोई मशीनरी आ रही है तो वहाँ पे वो प्रोसेस करने के लिए भी एक ये बेसिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है कि पार्ट्स की जरूरत रहती है। तो उस सेंस में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कैसे पहुँचो, जैसे अभी डेवलपमेंट है बट क्या उस लेवल पर वहाँ पे पहुँचा है, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन है। वो एक थिंकिंग प्रोसेस जा रही है कि भाई हाँ अगर उस, और दूसरा कि पर्टिकुलर ऑल ओवर जैसे सभी कॉन्टिनेंट में, जैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमें कौन से एरिया में जाना चाहिए कि जहाँ पे ये, मैं गूगल कर रहा तो देखा तो प्लास्टिक मोल्ड्स के मैन्युफैक्चर मुझे पूरे अफ्रीका में हार्डली 10 मिले, है ही नहीं। अगर शीट मेटल्स मैन्युफैक्चरर्स की बात करूँ तो वहाँ पे पार्ट्स मैन्युफैक्चर वाले हैं बट डाइस वाले तो मुझे एक भी नहीं मिला। तो मुझे क्वेश्चन हुआ कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट डेवलप हो रहा है तो क्या वहाँ पे एक्चुअली नहीं है, तो हमें जाना चाहिए कि वहाँ पे है तो दिख नहीं रहा क्या। मैंने इसीलिए बोला सर आप एग्जैक्टली अपना प्रोडक्ट का डिटेल बताना। मैं आज के डेट में ये आपको बता दूंगा कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और कहाँ से वो सर्विस हो रहा है। आपको जो माल वो बनाने के लिए भी चाहिए, वो माल कहाँ से आ सकता है, क्या भाव पे आपको मिल सकता है, ये सारी चीजें अपन बता सकते हैं आपको। श्योर, मुझे आपका कार्ड ये प्रोग्राम अभी जैसे खत्म होने के बाद विल शेयर इस कॉन्टेक्ट नंबर एज वेल, जो अपने जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे उनको ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर और पूरी डिटेल भी दे देंगे, और इवन यू कैन एक्सचेंज द कार्ड, नंबर 1. Number 2, they are here for next 2-3 days, right? So if someone would like to meet them one-to-one, so please contact us. You have our chambers number as well, और ये उनका नंबर भी आपको भी दे ही देंगे, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिएगा, तो आपके पास आके भी आपके साथ बैठ के डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। The last thing is after this program gets over, we'll take 1 or 2 more question. उसके बाद जो ब्रेकफास्ट का जो व्यवस्था रखा है, that is on the first floor. So please don't leave it. अभी आप यहाँ के उसके बाद एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकलिएगा, और उसके बावजूद भी कोई कांटेक्ट कुछ भी अगर आपको चाहिए तो हम लोग तो यहाँ पे परमानेंट है. We'll definitely get connect with Arise team. Yeah, so brochure is also there. We'll take 1 or 2 question max. Manish, is it okay? बिल्कुल Yes. गुड इवनिंग. हाँ बोलिए सर. हेलो. हाँ जी, मनीष जी, मेरा नाम हेमल देवान है. पिछले करीब 20 साल से हम लोग एम्ब्रॉयडरी का यूनिट यहाँ पे रन कर रहे हैं सूरत में. वी आर ऑल्सो मेकिंग गारमेंट्स फॉर होम डेकोर आइटम्स. मेरा क्वेश्चन ये था कि सिफली और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरीज का ऑलरेडी क्या स्टेटस है वहाँ पे, यानी ऑलरेडी मशीनें लगी हुई हैं, कितना बड़ा उसका मार्केट. यहाँ से काफी सारा कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ से करके, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे, और कौन सा जोन हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा. सो सर, अभी जो टेक्सटाइल एंड गारमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है या जहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है वो है टोगो, बेनिन. नाइजीरिया में भी अभी टेक्सटाइल का काफ़ी सारा एक्टिविटीज चालू हो रहा है. सो दैट बेल्ट, वेस्ट अफ्रीका बेल्ट इज बेसिकली इज अ वर्जिन यू कैन से. तो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है. देन आप जो पर्टिकुलरली एम्ब्रॉयडरी बोल रहे हो, एम्ब्रॉयडरी की बहुत सारी मशीनें नहीं है वहाँ पे, बहुत कम एक्टिविटीज है. तो आई थिंक यू कैन हैव वन एम्ब्रॉयडरी सेक्शन एंड यू कैन सर्व वेरियस गारमेंट यूनिट्स. तो ऑलमोस्ट मैंने जैसे बोला कि इन नेक्स्ट 2 to 3 years around 15 to 20,000 units will be operational. 15 to 20,000 machines, sewing machines, okay, with this various number of garment units, but total capacity you can say around 20,000 between Togo, Benin, Ghana. So these are all neighboring countries. और अफ्रीका में ये फायदा है कि आप you can access easily all these countries by road also. तो आपको dependency on port will be very less.
So if someone wants the raw material or the services of your activity, they can easily access from any of the country by road. And government subsidies वगैरह जिसकी बात हो रही है वो सारा टेक्सटाइल में अवेलेबल है? सर frankly speaking, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज एशिया में अवेलेबल है, that subsidies you cannot get in Africa, because Africa में already they are means the government and the countries are poor. तो वहाँ पे means we cannot expect, but whatever they can do mostly basically on the fiscal side as well as the import duty, then the service tax, all that benefits they have given. But the subsidy side, they are providing subsidy only on the electricity and the gas. But like capital subsidy or this type of subsidies which you are getting generally here, that's are not available. There are no import duties at all. No. So there is also scope for selling machineries there. Like we can import and sell machines, the specific machines for textiles. Yeah, you can sell. For any benefit for you to enjoy, you at least need to do 30% of value addition. Okay. आपको पूरा माल नहीं बनाने की जरूरत है. अगर आप 30% वैल्यू एडिशन दिखाते हैं तो जो भी बेनिफिट्स होते हैं जोन के, which is meant, so for example if you are wanting to serve, you want to do export, तो उसके लिए आपको मतलब एज एन उसमें भी आपको ये रहता है कि आप 70% 80% एक्सपोर्ट के लिए करिए और 20% आप लोकल मार्केट के लिए करिए. अगर सपोजिटली आपको सिर्फ लोकल मार्केट को एड्रेस करना है तो आप देयर आर जोन्स फॉर दैट आल्सो, which we call industrial zone. So that is primarily for पर उसमें भी आप 20-30% तो आप एक्सपोर्ट कर ही लेते हो. देखो पेपर पे बहुत कुछ पॉसिबल है सर. अगर आपके पास जैसा क्या होता है ना कि हर बिजनेस एक डिफरेंट केस स्टडी होता है एंड एवरी बिजनेस रिक्वायर अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग. तो एज वी सेड वी हैव अ बिग टीम एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू हेल्प. मनीष जी, आपने बताया कि अभी वहाँ एग्रीकल्चर का भी बहुत स्कोप है, ठीक है. तो एग्रीकल्चर अगर होगा तो फिर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी स्कोप होगा. तो अगर हम वहाँ का जो लोकल है वहाँ कर सकते हैं. सर मेरे पास नेचुरल गैस अबंडेंस में है, तो अगर आपको यूरिया बनाना हो, पोटेशियम बनाना हो या कुछ और अगर आपको करना हो, फॉस्फेट कर, जो भी आपको करना होगा वो हर चीज़ पॉसिबल है. और ये बहुत बड़ा सेटअप होता है फर्टिलाइजर का और रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है सर. बहुत सारा माल बाहर से आ रहा है. What about pesticides? Manufacture pesticides over there? Yes. Sir, just on the pesticide, basically in Africa, if you see most of the people, they don't generally prefer fertilizer, chemical fertilizer. They just mainly go for the organic fertilizer. So the pesticides and this, if it is organic, it will be much preferable. So, agriculture, particular talking about agriculture, तो जो sourcing रहता है, suppose sourcing रहता है, तो basic level पे आपके उधर से support क्या आप मिल सकता है cooperatives की तरफ से? So देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल कैश्यू है. कैश्यू का पूरा प्रोडक्शन एक कोऑपरेटिव हैंडल करता है. ओके. अब वो आपको कैश्यू दे नहीं दे ये कोऑपरेटिव डिसाइड करता है. जैसा मैंने बोला कि एज मैं किसी अगर रॉ मटेरियल में आपकी मदद कर सकता हूं तो वो टिम्बर. क्यों मैं ये बोलता हूं कि मैं आपको टिम्बर में मदद करूं? क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है फॉर दैट लैंड, दैट फॉरेस्ट. उसके अलावा किसी भी रॉ मटेरियल के बारे में हम कोई प्रॉमिस नहीं करते. ओके. जैसा मैंने बोला, लार्जली क्या होता है कि एक इन्वेस्टर जो होता है वो पहले से मार्केट एक्सप्लोर किया हुआ रहता है. उसने अपने सप्लायर, अपने बायर ढूंढे हुए होते हैं और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए हमारे पास आता है. पर मैं इतना बता सकता हूं आपको, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पाइनएप्पल, 35% of pineapple is A grade pineapple which get exported to Europe. But 65% of pineapple is still there in the country which can be processed. आप उसका जूस बनाओ, पल्प बनाओ, पाउडर बनाओ, जो भी बनाओ. बट इसका सेटअप डालने के लिए बहुत बड़ा खर्चा नहीं है. ये सिर्फ पाइनएप्पल की बात कर रहा हूँ. बट उसी तरीके से कसावा है,
मैंगो है, you know, all this is definitely possible. मेरा नाम मोटी मंगानी है। सर जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप करने में आप हेल्प करते हैं और टोटल आप हमको सब देते हैं, क्या आपका कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो रिसर्च करने में भी हेल्प करे कि हमारे लिए वहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? जैसे आप कहते हैं यूजुअली मैन्युफैक्चरर जो भी है वो मार्केट खुद सर्च करता है, क्या आपकी कोई टीम ऐसी भी है कि भाई बाई चांस को आज कोई फैक्ट्री डालनी है, पहले मेरे को सर्च करना है कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, किस चीज़ की डिमांड है? सर उसके लिए पहले पैसा लगता है थोड़ा, वो पैसा वो एडवांस जिस दिन आ जाएगा उस दिन जो मदद चाहिए उसके बाद आपको मिलेगी। लेकिन लार्जली मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि मैं आप जिस चीज से रिलेटेड होते हो या जो बिजनेस कर रहे होते हो तो यू जनरली वांट टू स्टिक टू दैट इंडस्ट्री, या अगर आप किसी और चीज को एक्सप्लोर भी करना चाहते हो तो ये आपके पास थॉट होता है। 500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ये मेरे लिए कर पाना कि आपको किस चीज में करना है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे ऊपर थोड़ा जुल्म हो जाएगा, समझिए। पर एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, गैबॉन जो हमारा पहला जोन था उसमें जितने भी ओनर लोग हैं वो सारे के सारे 25 से 30 साल की उम्र के यंग बच्चे जाके जो जिनके मदर फादर किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, अच्छा इन्वॉल्व बिजनेस है, पर वो उस बिजनेस में वहां पे अपने एक बेटे को भेज दिया। ये सारे 25 से 30 साल के ब्रैकेट वाले बच्चे हैं। हर किसी ने 1.5 से 2 साल में जितना पैसा डाला था वो पैसा निकाला, अच्छा पैसा ही बनाया। परेश भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर सपोजिटली यंगर जनरेशन डाइवर्सिफाई करना चाहता है और अपने माँ बाप के छत्रो छाया से निकलकर एक नए बिजनेस को सेटअप करना चाहता है तो कोई भी धंधा सेटअप करने के लिए आज की डेट में 10-15 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक साइजेबल और बिजनेस चाहिए। ऐसे केस में मेरे ख्याल से अफ्रीका इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर अ बिगिनर। बहुत चीज अवेलेबल है, हम बहुत कुछ सिखाता भी है। ओके, कंप्लायंस इशू इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, मैनेज हो सकते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए, अगर कोई यंग बंदा जिसके पास पैसा हो और जिसको पता हो क्या करना चाहता है तो वी कैन डेफिनेटली बी ऑफ हेल्प। Okay, thank you. Komal bhai, please extend a vote of thanks, and after vote of thanks, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेकफास्ट वहाँ पे रखा है तो वहाँ पे जाएंगे। कोमल भाई। Thank you very much. First of all, I am very much thankful to our President Nikhil Bhai Madrasi, our Vice President Ashok Bhai Jirawala, our Honorary Treasurer CA Mitesh Bhai Modi, and the other office bearers who give us the permission and arrange this program for the members and the citizens of this Chamber of Commerce. I am very much thankful to Mr. Manish Maharaj and Tushar Kennarji for giving us a very good information about the Africa, and I am very much thankful to all the people who joined this program, and lastly our CEO Paresh Bhai Bhatt and Sanjay Bhai Punjabi, who is the group chairman. Under his leadership we are arranging this program in this committee. Thank you very much.